Now we are going to study about interactive models. Interactive models are actually those models which are two-way. The feedback in this particular model is not simultaneous but rather slow. Talking about Osgood and Shams model, this particular model was a break from one-way communications and all the linear models. This model is circular in nature. There are four major principles that you need to memorize while you study Osgood and Shams model. The first principle says that communication in this particular model is circular. That means the receiver and the sender, the encoder and the decoder keeps on changing their roles. The next principle says that the communication here is equal and reciprocal, which means both the parties are equally engaged as encoders and decoders as well. The third principle says that the message in a particular communication requires interpretation, which means the information should be interpreted to be understood. The fourth major principle is that this particular model involves three steps, which is encoding, decoding, and interpretation. The next model we are going to study about is Wesley and MacLean model. This model is primarily used to explain mass media. While looking at the flowchart of this particular model, you will understand that A refers to sender, B refers to the receiver, C refers to the gatekeepers, F is feedback, X refers to the environmental factors present with sender, receiver, and gatekeepers individually. X1 here explains the sensory experience, whereas X2 explains the object of orientation for the sender side. But when we go to X2, it also explains the object of orientation but for the receiver. The first thing is, if you will look at the flowchart, there are 5 different sensory experiences mentioned. That is X1, 2, 3, 4 and 5. Now to understand this particular model, you need to understand that there are different interpretation of a single environment with different people. This particular model can be a bit confusing, but you will understand it in the most easiest manner. तो अब इस मॉडल को हम समझेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो आपने एक बार पढ़ लिया उसके बाद नहीं भूलने वाले हो। तो अब क्या है, आपको पता है कि जो हमारा ए है वो है हमारा रिपोर्टर, सी इज गेटकीपर एंड बी इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द मैसेज, दैट इज रिसीवर। ये x1 x2 x3 क्या है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये x1 x2 x3 ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्यों लिखा हुआ है? किसी भी इंसिडेंट्स को जब दो बंदे इकट्ठे देखेंगे तो उनको दो अलग चीजें नजर आती हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या दो अलग चीजें नजर आती हैं? फॉर एग्जाम्पल आप गए हो किसी ऐसी जगह जहाँ पे पुलिस और लोग दोनों हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये रिपोर्टर है ये किसी वॉर को कवर करने के लिए गया है, तो हो सकता है उसको ये नजर आए, यानी कि लोग पिट रहे हैं और आर्मी मार रही है, ठीक है। अब यही सेम चीज हो सकती है कि कोई और रिपोर्टर जब जाएगा इसी वॉर का दूसरा पर्सपेक्टिव नजर आए, यानी कि आर्मी लोगों की हेल्प कर रही है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, एक एग्जाम्पल तो हो गया ये कि आपने जाकर, क्योंकि वॉर हो रही है तो किसी बहुत बड़ी एरिया में होगी, छोटे से एरिया में तो वॉर नहीं होगी कि आप अगर गए हो तो आप सारी वॉर एक साथ तो नहीं देख सकते। तो हो सकता है कि आपको ये नजर आए कि पुलिस एक्चुअल में लोगों को मार रही है, या फिर हो सकता है उस एरिया में एंटर करो जहां पर पुलिस लोगों को हेल्प कर रही है। तो आप पूरा इंसिडेंट नहीं देख सकते, जो आपने देखा वही आपका परसेप्शन बन जाता है, ठीक है। ये है x1 x2 x3, यानी कि अलग अलग परसेप्शंस ऑफ अ सिंगल इवेंट। हो सकता है जब ए गया है तो उसने ये देखा, हो सकता है कोई भी A1 A2 यानी कि कोई और रिपोर्टर गया तो उसने भी ये सिनेरियो देखा। अब इस सिनेरियो को देखने के बाद उसको कैसे इंटरप्रिटेट किया गया अपने दिमाग में, वो बनता है उनका परसेप्शन। ये फोटो देखने के बाद कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये वाली लेडी जो है इनके आगे हाथ फैला रही है, या फिर इनको वो रो रही है कि मुझे छोड़ दो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में हाथ जोड़कर उनको थैंक यू कह रही हो। तो अब आपका परसेप्शन क्या बनेगा, यानी कि ए रिपोर्टर का परसेप्शन क्या बनेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास स्टोरी क्या पहुंचेगी।
इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है x1, x2, x3, x4 यानी कि अनलिमिटेड सिनेरियोज और पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं उस बंदे के जो वो देखने गया है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि जब ए ने वो देख लिया तो वो आकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? सी को। सी है गेटकीपर, कंटेंट राइटर, एडिटर, कोई भी हो सकता है ये बंदा। अब इस बंदे को यानी कि सी जो है वो अपने पर्सपेक्टिव को लगाकर वो सिंगल सिचुएशन सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, ठीक है, ये रहा ए ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कुछ लिख के, उसको फिल्टर किया गया। जब आपने कोई चीज पढ़ी तो उसके अंदर आपने अपना भी परसेप्शन लगाया, आपने अपने दिमाग से समझा, ठीक है, सबकी समझ अलग होती है। तो सी ने जब वो समझा तो यहाँ पर बन गया फीडबैक ऑफ सी एंड ए, FCA, ठीक है, ये बन गया FCA। अब क्या होगा, जो ये गेट कीपर है यानी कि जो ये मीडिया फर्म है वो रिपोर्ट्स या न्यूज़पेपर्स अपने बाहर निकालेगी। जब वो रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर्स बाहर निकालेगी तब लोग उसको पढ़ेंगे और वो अपने परसेप्शन से पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी बात चेंज हो जाएगी। बट यहाँ आके भी कुछ ना कुछ तो चीज़ों में डिफरेंस आएगा, बिकॉज बी जो कि रिसीवर है, रीडर है, लिसनर है रेडियो का, या जो भी चीज़ के थ्रू उसके तक बात पहुंच रही है, जो भी वो कंज्यूम कर रहा है उसको वो अपने दिमाग से कंज्यूम करेगा। सो दिस इज कॉल्ड वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जिसको भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, हल्की सी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में, एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, आप कहीं भी पूछ सकते हो, कहीं भी। इस मॉडल में बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यूजीसी नेट के पेपर के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। बिलीव मी, ये इन्फॉर्मेशन आपको मोर देन इनफ है। आपने ये समझ लिया, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो भी रिलेटेड आएंगे, चाहे आप PYQs करके चेक कर लो, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। हमारे पूरे सिलेबस में मोर देन 50 मॉडल्स हैं, तो आपके लिए हर मॉडल का कोर जानना बहुत जरूरी है। ये वाला मॉडल यहीं पे खत्म होता है फॉर आर पेपर। जिनको PhD लेवल्स के लिए पढ़ना है वो दूसरे कोर्सेज ज्वाइन करके एप्लीकेशन पे PhD कोर्सेज के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो ये एक हमारी वेबसाइट है www.mediaandmore.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन का भी मिल जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे, यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और अभी कौन से चल रहे हैं। बहुत 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 सारे कोर्सेज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे A to Z। उसके बाद आपको यहीं पे मिल जाएगा सब कुछ, टेलीग्राम, यूट्यूब, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो आपको इस वाली क्लास का, जो ये क्लास चल रही है मॉडल्स की, इसका आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा। वो मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे आपने सारे मॉडल्स पढ़ लिए, फटाफट से यहाँ पर आओ, सारे मॉडल्स पढ़ने के बाद इसको यहाँ पे आके आप रिविजन कर सकते हो, ठीक है। फ्री क्लासेस और कोर्सेज, PDFs जो हैं, सब कुछ इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। फटाफट से आके इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे ये वाली बहुत अच्छी सीरीज है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज है। जो लोग नए नए पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप ये वर्ड्स पढ़ सकते हो। इसी के साथ हमारे इंटरैक्टिव मॉडल्स होते हैं खत्म। और अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये वाला चैनल सब्सक्राइब करना है विच इज मीडिया एंड मोर। इसको सब्सक्राइब करना है बहुत याद से, फटाफट से सारी सारी वीडियोस वगैरह खोल के देख लो, बहुत अच्छा कंटेंट है। कोर्सेज चाहिए तो आप कोर्सेज, रील्स, लाइव सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे आके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर पसंद आया है तो।